So we are on exercise 1.2 and sum number 8. Weekly wages for a group of 100 persons are given below. Wages दिया है और number of person दिया है. And D3 for this group is 1100, that is 1100 rupees. Calculate the missing frequency. So यहाँ पे दो missing frequency है. We have two question mark over here. I'll take it as X and Y. So these two value we have to calculate the value of X and Y. So let's start. So अगर दो values निकालना है तो तुम्हारे पास दो condition भी दिया है. Weekly wages for a group of. So we have first condition 100 person. मतलब मेरे पास total number of person is nothing but 100. And second condition is given as D3. D3 for this group is 1100. ठीक है. So we have these two condition. So I'll start. सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी वैल्यूज दिए विल राइट वर्टिकली इन कॉलम वाइज wages and number of person. Wages, it is type 3 data, continuous, मतलब tabulated with class interval 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, and 2000 to 2500. So here I will write the values. 7. Second frequency is unknown. I'll take it as X. It's 25, 30, and Y. Now I will calculate the CF, which is called cumulative frequency. Keep on adding. So first value will be 7. Next value will be 7 plus X. So next value will be 7 plus X plus 25, which is 32 plus X, and 32 plus X plus 30, 62 plus X, and 62 plus X plus Y, one more unknown. So this is 62 plus X plus Y. So this is my N, the sum of frequency. CF का जो last column रहता है, that represent the N, total sum of frequency. 62 plus X plus Y. But N is given as 100. Question में दिया हुआ ना N. Total we have 100%. So 100 is equal to 62 plus X plus Y. It means X plus Y. 62 को वहां ट्रांसफर कर देंगे. It will be 38. So X plus Y is equal to 38. This is my first expression. Now we'll calculate the second expression. D3 दिया हुआ है, that is third decile. तो यहाँ पे question में I will write D3 is equal to 1100. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जब भी तुम्हारे पास डेसाइल दिया हुआ है, सो विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले और तीन वैल्यूज निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट थ्री वैल्यूज. D3 इज गिवन एज 1100. सो सबसे पहले देखेंगे 1100 किसके बीच में आता है. सो विल गो ऑन द लेफ्ट कॉलम वेजेस में. 1100 कम्स बिटवीन 1000 एंड 1500. ठीक है. सो यहाँ से मेरे को तीन वैल्यूज लेना है. सबसे पहले L, उसी रो में आगे जाएंगे is my F, और उसके ऊपर वाले CF में ऊपर वाले लेंगे, and that is my CF. So we calculate these three values L, F and CF. So here I will calculate or use the formula for D3, which is L plus 3 times of n by 10 minus CF into H by F. So now we are going to substitute the values over here. D3, which is 1100, lower class, this is my L, this is my F, and this is my C. The lower class is my 1000. 3 times of n already given in the question, it is 100.
बस अभी वैल्यूज पुट अप करना, फिर कैलकुलेशन करना। सी एफ विच इज 7 प्लस एक्स into h by f. H is the height or the width of the class, which is 500 upon the frequency, which is 25. So यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज पुट अप कर दी, बस अभी तुम्हें कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आई टेक दिस 1000 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे तुम्हारे पास कैलकुलेशन रहेगा, 0 0 कैंसिल, 3 10 30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ x, और ये भी कैलकुलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, 25 2 50 20, सो लेस हो जाएगा, इट विल बी 100, 30 minus 7 which is 23 minus x into 20, 20 वहां ट्रांसफर करेंगे तो 100 by 20 which is 5. I will calculate x, x को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे और 5 को इस साइड लेकर आ जाएंगे। So finally we got the one values. So x की वैल्यू मुझे 18 मिल गया। अब मुझे दूसरा अननोन फ्रीक्वेंसी दैट इज y कैलकुलेट करना है। So for that I'll substitute in equation 1. So x की वैल्यू 18 will substitute in equation 1. So it is 38 plus x plus y. Sorry, 38 is equal to x plus y, जिसमें 38 is equal to x की value is 18, y is unknown for me, 18 I will transfer over there, 38 minus 18 which is 20. So the second unknown frequency is 20. So in this way we have to calculate x and y. The weekly profit in rupees of 100 shops are distributed as follows. तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो कॉलम दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम प्रॉफिट पर शॉप एंड सेकंड कॉलम नंबर ऑफ शॉप। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो अगर प्रॉफिट पर शॉप 0 to 1000 है, तो ऐसे मेरे पास 10 शॉप्स हैं। प्रॉफिट 1000 to 2000 है, ऐसे मेरे पास 16 शॉप्स हैं, एंड सो ऑन। द लास्ट प्रॉफिट पर शॉप अगर 6000 to 7000 है, ऐसे मेरे पास टोटल 3 शॉप्स हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ, लिमिट मीन्स रेंज निकालना है, फाइंड द लिमिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%, फाइंड द लिमिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%। ये मिडल 60% बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे बीच के 60% चाहिए। देखो कैसे बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मिडल 60%, तो ये जो रेंज है इज फ्रॉम 0 to 100, इसका मिडल 50 आएगा, बट आई वांट मिडल 60%, आई वांट मिडल 60%। तो मिडल 60% मतलब क्या करेंगे, जो 60 है उसका हाफ करेंगे 30, तो ये जो मिडल है उससे 30 लेफ्ट जाएंगे और 30 राइट जाएंगे। सो 30 लेफ्ट जाएंगे मतलब 30 लेस हो जाएगा, सो 30 लेस करेंगे इट विल बी 20, और 30 ऐड करेंगे इट विल बी 80। दिस इज P20 एंड P80। तो अगर मिडल 60% निकालना है, मतलब मुझे इन शॉर्ट P20 एंड P80 निकालना है, मतलब ये बीच के 60% है, एग्जैक्टली मिडल के 60%, एंड दैट टू आर माय रेंज द लिमिट्स। तो कभी भी लिमिट्स बोला मतलब वहां पे तुम्हें दो वैल्यूज निकालनी है। एक और एग्जांपल दे क्वेश्चन से हटके, अगर क्वेश्चन बोला कि मिडल 40% निकालो, ठीक है, सो द सेम वे विल डू। वैसे तो तुम लोग ओरली निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं वर्किंग बता दे रहा हूँ, दिस इज 0, दिस इज 100 एंड मिडल में 50 आता है, बट आई वांट मिडल 40%। तो 40 का हाफ करेंगे 20, तो 50 से 20 लेफ्ट साइड जाएंगे और 20 राइट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट साइड मतलब लेस कर देंगे, 50 माइनस 20 इट विल बी 30, दैट इज P30, और 50 में 20 ऐड कर देंगे विच विल बी P70। तो अगर बोला रहेगा कैलकुलेट द लिमिट ऑफ मिडल 40%, तो यहाँ पे तुम्हें दो वैल्यूज निकालना है, P30 एंड P70। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब भी मिडल 60% मिडल 40% है, मतलब वहां पे तुम्हें दो परसेंटाइल निकालना है, एक P लोअर एंड P अपर करके, मतलब 50 के एक लोअर आएगा 50 के एक अपर आएगा। सो फिलहाल एज पर माय कैलकुलेशन आई वांट टू कैलकुलेट मिडल 60%, सो एज पर माय
we have to calculate P20 and P80. So let's start P20. The same way we'll do it. The question is of tabulated data with class A. So for that, this is my X, this is my number of shop, 0 to 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, and number of shop 10, 16, 26, 20, 25, and 3. Here I'll calculate the CF, which is cumulative frequency. 10, 10 plus 16, 26, 26 plus 26, 52, 52 plus 20, 72, 72 plus 20, 92, 92 plus 5, 97, 97 plus 3. So we have total 100 shops. Okay. Find the limit of profit of middle 60%. As it is given in the question, middle 60% मतलब मुझे पता है limit of middle 60%. It means I have to calculate P20 and P80. This two value we have to calculate. So I'll start with P20 first. So we'll do this calculation in two steps. पहले first step करेंगे P20 के लिए, which is 20 times of n by 100. 20 times of n by 100. So which will be 20 into n, which this is my n, 100 upon 100. Cancellation होगा, this is my 20. अब इस वैल्यू से तुम्हें तीन वैल्यूज निकालनी है. So 20 comes between 10 and 26, इसके बीच में आएगा. तो this is my L, this is my F, and this is my CF. L, F, and CF. Now I'll use the formula to calculate P20. L plus it's 20 minus CF into H by F. बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. दिस इज 1000 plus 20 times of n, which is my 100, CF, which is 10, H, the height, upon frequency 16. Okay, now the rest part is just calculation. 20 minus 10, which is 10. So 1000 plus cancellation करते हैं यहाँ पे. 4 4s are 16 and 4 2s are 8, 4 5s are 20, 250. 250 into 10, that is 2500 upon 4. Completely divide होगा. 4 6 are 24, 4 2s are 8, 4 5s are, that is 1625. This is my P20. ठीक है. इसमें लेकिन अभी और एक वैल्यूज निकालना, दैट इज P80. बट अगेन सिमिलरली सेम टाइप से ही करना. जैसे मैंने P20 निकाला, दैट इज 20 टाइम्स ऑफ समथिंग एंड कैलकुलेट किया, फिर उससे तीन वैल्यूज मिली. सिमिलरली P80 के लिए भी तुम्हें सेम स्टेप्स ही करने हैं, जस्ट 80 टाइम्स ऑफ n by 100, और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा. मतलब वैल्यूज कैलकुलेट करना है, L, F और CF, एंड सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें P80 निकालना है. सो दिस पार्ट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क, प्रैक्टिस करो, सो विल कम टू नो कैसे करना है. ठीक है. So this is what we have, P80. Next. ठीक है. और सब क्वेश्चन सिमिलर टाइप के थे, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट. अब जो लास्ट क्वेश्चन करना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10.
In a particular factory, workers produce various types of output units. The following distribution was obtained: output unit produced and number of workers. तो यहाँ पे कुछ आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस किया हुआ 70 to 74, ऐसे मेरे पास 40 वर्कर हैं. 75 to 79 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले मेरे पास 45 वर्कर हैं, सो ऑन. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट. मतलब मुझे पता करना है कि 82 आउटपुट यूनिट से लेस प्रोड्यूस करने वाले जो भी वर्कर है उनका परसेंटेज क्या रहेगा. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक जनरली अगर एक ओवरव्यू देखूं कि जो फर्स्ट कॉलम है, वैसे तो ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा, वो बाद में करूंगा मैं. सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि 82 कहाँ पे आ रहा है. इट इज 80 टू 84 के बीच में. तो इसका मतलब 80 टू 84 मतलब यहाँ तक तो आने वाले हम लोग. मतलब 70 टू 74 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले मेरे पास 40 वर्कर है. 75 टू 79 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले मेरे पास 45 वर्कर है. और 82 मतलब कुछ वर्कर इसमें अभी भी और आएंगे जो मुझे भी नहीं पता है. 82 मतलब 80 से 84 के बीच में कुछ और वर्कर हैं. मुझे उनका अगर परसेंटेज निकालना तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्कर जितने हैं पहले वो कैलकुलेट करूंगा. फिर 40 प्लस 45 प्लस कुछ तो रहेगा, दैट वी डोंट नो राइट नाउ, बट कुछ तो रहेगा, वो तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल वर्कर इनटू 100 विल गिव यू द परसेंटेज. तो इन दिस वे दिस इज द जनरल मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई है. जो 80 टू 84 में कुछ वर्कर अभी भी है जो 82 आउटपुट यूनिट से लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब 80 से 82 मतलब कुछ वर्कर है, एग्जैक्टली हाफ भी नहीं ले सकते. अब वो कितने वर्कर रहेंगे दैट आई डोंट नो. सो डायरेक्टली परसेंटेज निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इन केस अगर ऐसा बोला होता 80 नहीं 82 नहीं बल्कि 79 अगर होता, लेस देन 79 आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर हैं. तो मैं दो कॉलम ये उन दोनों को ऐड करता तो नंबर ऑफ वर्कर मिलते हैं, और उनको परसेंटेज में कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता कि नंबर ऑफ वर्कर जो भी आंसर है डिवाइड बाय द टोटल वर्कर इनटू 100. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो कुछ वर्कर बीच में आ रहे दैट इजीली अवेलेबल नहीं मेरे पास. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज परसेंटाइल का फॉर्मूला. अब देखो वो कैसे यूज करेंगे. सो मुझे परसेंटेज ऑफ वर्कर निकालना है जिनका टारगेट कितना 82 आउटपुट यूनिट्स, लेस देन 82 आउटपुट यूनिट. सो आई विल राइट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मुझे नहीं पता, दिस इज द परसेंटेज. टारगेट दिया है 82, px is equal to 82. What is x represent? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x represent the percentage of worker producing less than 82 output unit. Producing less than 82 आउटपुट मतलब 82 आउटपुट यूनिट से लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. x रिप्रेजेंट दैट परसेंटेज, और वही x मुझे कैलकुलेट करना है. सो वी नो कि px इज 82 इज गिवन. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास क्लास दिया है फर्स्ट विल मेक देम कंटिन्यूअस. तो दिस इज आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ वर्कर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 74 और 75 वन का गैप है. तो वन का गैप है मतलब 0.5 लेस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे. तो 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5, 89.5, 89.5, 94.5, 94.5,
94.5 to 99.5, and the last one, number of worker 40, 45, 50, 60, 70, 80, and 100. CF, which is my cumulative frequency. So again, keep on adding. First 40, 40 plus 45, 85, 85 plus 50, 135, 135 plus 60, 195, 195 plus 70, 265, 265 plus 80, 345, 445. This is my n. ठीक है, क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है एंड वी नो कि 82 आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड है. तो वेन एवर वी नो दी परसेंटाइल, मतलब जैसे नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में D3 दिया था, पिछले टू पिछले D3 1100. सो जब भी तुम्हारे पास आंसर दिया है कि कौन सा परसेंटाइल वो तो नहीं पता, बट पता है कि 82 आंसर है. सो विल फाइंड द वैल्यूज, जो 3 वैल्यूज निकालना है, विल फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तो 82 पहले देखेंगे लेफ्ट में कहाँ पे. 82 कम्स बिटवीन 79.5 टू 84.5. तो ये मेरा हो जाएगा L, this is my F, and this is my CF. We'll have this three values 79.5, L, F and CF. अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले फॉर्मूला दे रहा हूँ PX, which is L plus X times of N by 100 percentile है, minus CF into H by F. PX, which is 82, L the lower class 79.5, X कैलकुलेट करना है N 445 upon 100, CF 85 into H by F. H the step size, it is 5, class width 69.5 से 74.5, 5 का गैप है एंड 5 का सब में गैप है. अपॉन दी फ्रीक्वेंसी इट्स 50. सो अभी मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें x अननोन है एंड दैट x वी हैव टू कैलकुलेट एंड दैट इज माय परसेंटेज. सो दिस इज 82, 79.5 वहां जाएगा तो लेस हो जाएगा, is equal to it's a 4.45x. डेसिमल लगा दिया, डेसिमल प्लेस कर दिया फ्रॉम टू प्लेसेस. minus 85 and 5 ones are 5 tens, that is 1 by 10. 82 minus 79.5, which is 2.5. 4.45x minus 85, and this is 1 by 10. 10 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will be 25. ठीक है, so minus 85 वहां पे जाएगा, will get added. कैलकुलेशन में यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ. ठीक है, so this is 25 plus 85 is my 4.45 of x. 110. Okay, so we'll transfer over there. Yeah, 4.45, 110 divided by, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू रिमूव द डेसिमल पार्ट. तो इट विल बी 1100 डिवाइड बाय 445. दो जीरोस 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, बस अभी से डिवाइड करना, दैट्स योर आंसर. सो 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 2s are 5 2s are, that is 2200 divided by 89. So now you have to do this calculation to get your answer, and that's your percentage. So 24.71. This is my x, and what is my x represent? It represent the percentage. It represent the percentage. तो यहाँ पे पूछा था find the percentage of worker who have produced less than 82 output unit.
तो कितना परसेंट आएगा? 24.71। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे द percentage of worker who have produced less than 82 output unit is equal to 24.71%. That's it. This is tabulated data. Tabulated data with class. सब एक ही टाइप के सम से। इसमें तुम्हें ओजाइव ड्रॉ करना है। कुछ लोगों ने 10th में किया भी रहेगा ओजाइव। That you have to plot, and with that you have to calculate quartile, decile and percentile. एक क्वेश्चन में तीनों पूछ सकते हैं और तीनों में एक ही फॉर्मूला है। क्वार्टाइल का इट्स I times of n/4. थर्ड टर्म विल गेट इट फ्रॉम द ग्राफ। DI डेसाइल का I times of n/4, sorry not 4, 10, third term, and that too from the graph. PR, that is percentile, which is I times of n/100th term. बस एक स्टेप में फॉर्मूला और नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आएगा, दैट्स इट। और जो आंसर आएगा वो ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना है। बस इतना ही पार्ट कैलकुलेशन का तुम्हें शो करना है। दैट इज क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। I'll start with the question. एक बार देख लो फिर भी सब। क्वार्टाइल वैसे भी पता है सब फॉर्मूला तुम सबको, आई नो। एक बार बस देख लो, ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग फॉर्मूला ये। Okay, let's start with exercise 1.3. यहाँ पे क्वेश्चन में दे विल मेंशन कि तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। The following table gives the frequency distribution of marks of 100 student in an examination. यहाँ पे तुम्हारे पास मार्क्स दिया है 15 to 20, 20 to 25 and so on till 50 तक दिया हुआ है। And we have a number of student 9, 12, 23, 31 and so on. Determine D6 decile 6, Q1 quartile 1 and P85 percentile 85। मतलब इस क्वेश्चन मुझे तीनों निकालना है। एंड आगे क्या लिखा है? ग्राफिकली मीन्स यहाँ पे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करना मतलब मुझे ओजाइव प्लॉट करना है। अब वो कैसे प्लॉट करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कैलकुलेशन तो करना, तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF वो कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले विल राइट मार्क्स, देन विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन आई विल कैलकुलेट CF। ये मेरा F रहेगा, ये मेरा मार्क्स दैट इज माय X भी ले सकते हो। सो द वैल्यूज आर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. Values 9, 12, 23, 31, 10, 8 and 7. CF cumulative frequency first 9, 9 plus 12 is 21, 21 plus 33, 44,
44 plus 31, 75, 75 plus 10, 85, 85 plus 8, 93, 93 plus 7, which is my 100. तो ये मेरा हुआ CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए विल चूज एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट सेशन में.